Good morning everyone. My name is Narayan Vyas and today I am going to give a presentation on Bitcoin. So anyone know what is Bitcoin? Any guesses? Yes, please. Any cryptocurrency. Yes, Bitcoin is a digital currency. So before understanding about the digital currency, let us understand what is the currency we use in India. So in India, we use paper money as a form of currency, which is regulated by Indian government and Reserve Bank of India. But there are many problems in paper currency. For example, paper money is no value outside the country where it is issued. मीन्स अगर आप इंडियन करेंसी को यूएस में चलाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं चलेगी. एंड पेपर मनी कैन बी डैमेज, कैन बी बर्न, एंड गवर्नमेंट कैन बैन इट एनी टाइम, जैसे कि मोदी जी ने अपने नोट बंद कर दिए थे. एंड वन मोर इशू दैट international transactions are much difficult in paper currency transaction. And in India, we are currently using digital wallets like Paytm and MobiKwik. But there is one more problem that we have to totally depend upon the bank or the wallet which has the money issued. And there is a risk of hacking in digital transactions. So let's understand what are the most common issues in international transaction. If a normal person wants to transfer money outside the country, he must have a bank account and an international credit card. And to get an international credit card, we need to maintain minimum 30 to 40,000 balance in our account, which is not possible for everyone. And there are much higher transaction charges. For example, if we use PayPal for transferring money, there will be around 3 to 4% transaction charges, which is much higher. And if someone lives in Dubai and he just want to send his salary to any country, he will have to pay 15% taxes, which is much higher. And we exchange more than $6 trillion a day. So the main question is, what is Bitcoin? Bitcoin is a digital currency which only exists in computers and there is no physical exchange of Bitcoin. Bitcoin is a digital file and works like a ledger. Like in accounts, we use ledgers where we record the history of transactions we made. Bitcoin works just like SAM. It has a digital file which have records of all the transactions when the Bitcoin was generated from till now. And it is now the question is where it is stored. It is stored in every computer which use Bitcoin wallet. मतलब कि जैसे मेरे कंप्यूटर में अगर मैं Bitcoin यूज कर रहा हूँ और मेरे कंप्यूटर में Bitcoin wallet का सॉफ्टवेयर है, तो मेरे पास आज तक की जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है उनकी सबकी हिस्ट्री होगी मेरे पास. And even a simple villager needs to open a Bitcoin account. He don't need to go to bank or any offices. He just need a smartphone in which he can install a Bitcoin wallet app and generate its wallet. Then he will have the power of an international credit card. He can transfer money anywhere in the world. So, history of Bitcoin. Bitcoin was developed by an anonymous computer programmer Satoshi Nakamoto in October 2008. Nakamoto published a paper called Bitcoin, a peer-to-peer electronic communication system, which means a person-to-person electronic communication system. उसने उसको Bitcoin को total explain किया था कि how it is work and how we can use it. The invention of Bitcoin considered as big as invention of Google itself and Internet itself. In 20 December 2012, India's first Bitcoin wallet app was launched, which is called JackPay. And around 2015, many big companies started using Bitcoin as a mode of payment, like PayPal, Microsoft, and AliExpress. So now come to the most interesting part of Bitcoin, its price. As you can see the chart here, on 19 July 2010, it was the launch date of Bitcoin. इस टाइम पे Bitcoin wallet launch हुई थी, तब उसकी रेट थी 3.84 रुपीस, $0.06. अब आप इसकी रेट देखिए, धीरे-धीरे इसकी रेट बढ़ती जाती है, जैसे $222 रुपीस हुए इसकी 2 मई 2011 में. उसके बाद उसकी 4,800 रुपीस हुई. एंड आप यहाँ पे देखेंगे तो जब 2016 आया तो उसकी 36,000 रेट पहुंच चुकी थी. और 11 जून 2017 को इसकी रेट थी 1,93,323. एंड आज की करंट रेट है इसकी 2,92,054 रुपीस. और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने बिटकॉइन वॉलेट में इन्वेस्ट किए थे 400 रुपीस अराउंड 8 मंथ्स एगो. एंड नाउ द वैल्यू ऑफ दैट 400 रुपीस बिकम 3,000 रुपीस. मतलब मैंने 5-8 महीने के अंदर इसकी वैल्यू में इतना चेंजेस आया.
So the main question is how the value of Bitcoin fluctuate. Now let's take an example of gold. अगर मेरे को 100 रुपए में 1 किलो गोल्ड मिल रहा होता तो मैं 1 किलो गोल्ड इजीली परचेज कर लेता, पर धीरे धीरे क्या हुआ कि गोल्ड की डिमांड इंक्रीज होती गई और उसकी प्राइस में भी इंक्रीमेंट आया। ऐसे ही बिटकॉइन वर्क करता है। बिटकॉइन की जो सप्लाई है वो एक लिमिटेड है, उससे ज्यादा बिटकॉइन जनरेट नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल क्या only 21 million bitcoins can be generated and in 2017 16.5 million bitcoins already mined. Generation and mine are bitcoin. Like physical money or debt money, we don't need to depend on a third party company or bank. For example अगर तुमको बैंक में पैसे रखते हैं तो टोटली तुमको बैंक पे डिपेंड रहना पड़ता है and there are much lesser transaction charges. आप 1 रुपया सेंड करो या 1 लाख रुपए सेंड करो, ट्रांजैक्शन चार्जेस बहुत कम होंगे। और इंडिया में देखें तो ओनली 10 to 30 रुपीस के आसपास है। एंड बिटकॉइन इज ए ग्लोबल करेंसी, नो कंपनी, country or organization own it, which means no one can stop it. Either they can ban it, for example बिटकॉइन को कोई भी कंट्री बैन कर सकती है पर उसको कोई स्टॉप नहीं कर सकता क्योंकि इसका कोई मालिक नहीं है। तो फिर मालिक कौन है इसका? जिसके पास में बिटकॉइन वॉलेट है वही इसका मालिक होता है। Jetpay, Unibond and CoinSecure are two popular Bitcoin wallets in India. इनकी ऐप Google Play Store पर अवेलेबल है और आप उसको नेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं वेबसाइट के थ्रू। एंड जैसे 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं वैसे बिटकॉइन जो होता है वो 8 डेसिमल पॉइंट में डिवाइड हो सकता है। उसमें जैसे अपन पैसे की अपन 1 रुपए में 100 पैसे बोलते हैं वैसे बिटकॉइन की यूनिट होती है सतोशी। So how the Bitcoin transaction works, how the Bitcoin come into market, how the Bitcoin is generated. Here is the explanation. If John Doe want to send money to Naren Vyas, he will have a digital wallet. Okay, जैसे पेटीएम में क्या होता है अपने पास, पेटीएम में अपने पास मोबाइल नंबर होता है, वो अपना एड्रेस की तरह काम करता है। उसी तरह बिटकॉइन में भी आपको एड्रेस मिलता है, कुछ इस तरह से ये एन्क्रिप्टेड एड्रेस होता है। हर एड्रेस के साथ में एक डिजिटल सिग्नेचर इंक्लूडेड होता है। ओके, अब इसको पेमेंट भेजना है तो जैसे पेटीएम में अपन रिक्वेस्ट करते हैं वैसे उसमें बिटकॉइन वॉलेट का एड्रेस डालेंगे वो उसमें पेमेंट की रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। अब बैंकों में क्या होता है जैसे बैंक में अपन पेमेंट सेंड करते हैं तो ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट होती है, उसी तरह से बिटकॉइन में भी एक ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट होती है। बट वो जो ट्रांजैक्शन आईडी होती है वो मोर सिक्योर होती है, वो क्योंकि इसमें कोई मीडिएटर तो है नहीं। जैसे बैंकिंग में बैंक हेल्प करती है ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने के लिए, इसमें कोई मीडिएटर नहीं होता है। तो इसमें जो ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट होती है वो एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम को सोल्व करना पड़ता है ताकि ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो सके, वो अकाउंट की सिक्योरिटी मेंटेन की जा सके। अगर इन प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए बड़े-बड़े हाई पावर के कंप्यूटर्स चाहिए, नॉर्मल सीपीयू वर्क नहीं कर सकते, उसके लिए हाई पावर्स के जीपीयू चाहिए। जीपीयू मतलब ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, और उन कंप्यूटर्स की कॉस्ट होती है अराउंड 2 to 3 लाख रुपीस। और वो सबसे ज्यादा हीट जनरेट करते हैं, उनके लिए एसी रूम चाहिए। तो इस तरह से जब उसको मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं तो उनको रिवॉर्ड के रूप में बिटकॉइन मिलता है, मतलब बिटकॉइंस मिलते हैं उनको। तो वो बिटकॉइन होता है वो कहीं से आता नहीं है। फॉर एग्जांपल मैंने जिसको पेमेंट सेंड किया तो मेरे पास भी वो बिटकॉइन कहीं से आया होगा, बट जब ये प्रॉब्लम सोल्व करते हैं ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए वो बिटकॉइन में से आता नहीं है, वो ब्लॉकचेन जो बिटकॉइन को मेंटेन करती है वो उसको प्रोवाइड करती है बिटकॉइन। इस तरह से बिटकॉइन मार्केट में आते हैं। ये एक मतलब पैसे कमाने का तरीका भी हो सकता है बिटकॉइन में, या तो आप माइनिंग कीजिए या फिर बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कीजिए। जैसे मैंने 1000 रुपए डाल दिए, अब मैं उसको भूल जाता हूँ 2 साल तक, पता नहीं उसकी प्राइस बिटकॉइन की प्राइस क्या होगी, उसके अनुसार अपन को पेमेंट मिलता है। जैसे शेयर मार्केट, पर शेयर मार्केट में ये इशू होता है कि शेयर मार्केट अगर डाउन हो गया तो हो सकता है कि वो शेयर ऊपर ही नहीं आएगा, बट बिटकॉइन में ऐसा नहीं होता। बिटकॉइन में आज तक की हिस्ट्री है, जब से लॉन्च हुआ आज तक इसकी प्राइस इंक्रीज नहीं हुई है, डिक्रीमेंट होते हैं पर इसकी प्राइस इंक्रीमेंट होते ही फाइनल होता है। तो अब वो बिटकॉइन को अपने एक पेमेंट मोड की तरह भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी यूज पेटीएम, इफ यू वांट टू पे एनीवेयर वी जस्ट स्कैन द बारकोड। इन बिटकॉइन वी कैन आल्सो डू द सेम। वेबसाइट पे पेमेंट पेज ओपन होगा, उसमें आपका के मोबाइल से बारकोड स्कैन करना है और आप पेमेंट कर सकते हैं। व्हाई ट्रस्ट बिटकॉइन? मैंने कहा बिटकॉइन एक करेंसी है, आप उसको ट्रस्ट नहीं करोगे। इसको ट्रस्ट करने के लिए बहुत अच्छा रीजंस है। फॉर एग्जांपल बिटकॉइन इज टोटली ओपन सोर्स। Open source means if any programmer want to see its source code and want to learn how it works under the hood, he can see it on its website called blockchain.info or bitcoin.org. Bitcoin is transparent. Means अब आज तक की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई है बिटकॉइन नेटवर्क में, आप उसको ऑनलाइन blockchain.info नाम की वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। पर आप अगर ये भी बोल सकते हैं कि मतलब वेरीफाई कैसे होती है कि
ट्रांजैक्शन चेक कर सकते हैं तो उसमें आप डायरेक्ट ट्रांजैक्शन आईडी से नहीं, केवल जो ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट होती है वो एक तो एक क्रिप्टोग्राफिक नंबर होता है, वो उस ट्रांजैक्शन आईडी से ही आप उसकी पेमेंट का स्टेटस चेक कर सकते हो। एंड नो गवर्नमेंट कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन ओन इट मींस विद नो वन कैन स्टॉप इट एंड बिटकॉइन नेटवर्क नॉट yet hacked 99.99% uptime on the network and merchant receive payment much faster। फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडिया का एग्जांपल लूं, अगर कोई मर्चेंट है उसने कोई ऑनलाइन शॉप स्टेब्लिश करी, ओके, और उसने डेफिनेटली किसी न किसी बैंक से टाइप किया होगा, तो होता ही है कि जब मैं तो मर्चेंट हूं, आप कस्टमर हो, आपने पेमेंट कर दिया पर मर्चेंट को पेमेंट 2 महीने बाद मिलेगा या 3 महीने बाद मिलेगा, क्योंकि बैंक उसको होल्ड करके रखती है सिक्योरिटी पर्पस के लिए। पर बिटकॉइन में ऐसा नहीं होता। बिटकॉइन में एक ट्रांजैक्शन प्रोसेस होने में अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट्स लगते हैं और 10 मिनट्स के अंदर ही अंदर आपको सारा पेमेंट मिल सकता है उसमें। डिसएडवांटेज ऑफ बिटकॉइन, नो कस्टमर सपोर्ट, इसमें कोई भी कस्टमर सपोर्ट नहीं, क्योंकि कोई कंपनी ऑन नहीं करती, आपको बहुत केयरफुल रहकर ट्रांजैक्शन करनी पड़ती है। यू नीड टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स ऑफ बिटकॉइन प्रॉपर्ली। देयर इज नो चार्जर सिस्टम अवेलेबल लाइक ट्रेडिशनल बैंक्स एंड इफ यू लूज वॉलेट क्रेडेंशियल यू विल लूज बिटकॉइन परमानेंटली। Thank you. Now I would like to end my presentation with these two beautiful lines. Bitcoin investments are subject to market risk. Please trade at your own risk. I am not responsible for any damage caused. Now, before ending the presentation, I would like to show a demonstration of the Bitcoin wallet app in India. कनेक्टिविटी में क्या प्रॉब्लम आ गई? Okay, this is my phone and you just need to open Play Store and search for the app called Jetpack. This is the Bitcoin wallet app. Here you can deposit the money and purchase the Bitcoin. For example, के डिपॉजिट का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे मैंने पेमेंट का इसमें डिपॉजिट पे क्लिक, तो वहाँ से अपन उसको पेमेंट कर सकते हैं। या फिर कुछ जो इंटरनेशनल साइट्स होती है, उसमें ऑप्शन होता है कि आप सेलर से डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए, वो सेलर आपको उसका बिटकॉइन वॉलेट एड्रेस दे देगा, आप उसको अपनी ऐप से जाकर पेमेंट उसको सेंड कर सकते हैं। So what is PayPal in that case? PayPal is a payment gateway. Bitcoin is not a payment gateway. For example, इंडिया में पेटीएम है। पेटीएम इंडिया में पेमेंट गेटवे का भी काम करता है, वो एक वॉलेट का भी काम करता है। पर जो बिटकॉइन है वो प्योरली वॉलेट है, वो पेमेंट गेटवे नहीं है पॉसिबली। तो अगर पेमेंट का भी ऑप्शन अदर साइट्स में तो एक अलग कंपनी प्रोवाइड करती है, इसको इंटरफेस प्रोवाइड करती है। So PayPal is an account like PayPal or it is a kind of bank? Yes ma'am, it is account like Paytm. It's not a bank. So I can have it by going to PayPal? Yes ma'am. Any other question? अभी जैसे तुमने बताया कि पूरी गवर्नमेंट से स्टॉप नहीं कर सकती। Yes ma'am. अगर मेरी बजट या बिटकॉइन स्पैम तो हमारा जो अकाउंट है उसका क्या? मैम अगर ऐसा बैन होता है उसको एक्चुअली कोई बैन नहीं कर सकता, वो ऐप बैन हो जाएगी। बट अगर इन केस अगर गवर्नमेंट बैन करती है तो जो भी कंपनी ने आपको बिटकॉइन इशू किया है वो एक अल्टरनेटिव वॉलेट में उसको पेमेंट को सेंड करें। ऐसे दूसरी कंट्रीज में बैन हो चुकी है सर। तो उन्होंने जो इंटरनेशनल वॉलेट होती है, जैसे एक तो एक इंडिया की साइट हो गई, मैं इंडिया में एग्जांपल लूं, पेटीएम एक इंडियन साइट है, बट पेपाल जो इंटरनेशनल साइट है जो इंडिया में भी वर्क करती है। पेपाल जो है वो इंटरनेशनल साइट है जो इंडिया में भी वर्क करती है। तो इनके साथ अगर पेटीएम ब्लॉक हो गया तो जो बिटकॉइन में होगा कि बिटकॉइन का पेमेंट जो है पेपाल में ट्रांसफर हो जाएगा। और अगर ऐसा बैन होता है तो जैसे नोटिस मिलता है 15 डेज का मेरे को नोटिस मिला, तो बिटकॉइन में ऐसा सिस्टम होता है कि अपन उस जो पेमेंट है बिटकॉइन का पेमेंट उनको मतलब अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं उसको इजीली। एनी अदर क्वेश्चन? ऑर्गेनाइजेशन कोई कम्युनिटीज फॉर्म नहीं करती तो जो ये जो प्रैक्टिस में यूज हो रही है या ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट हो रहा है और उन्होंने बताया इसके लिए बड़े-बड़े सिंपल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पड़ रहे हैं, उन्हें कौन मेंटेन कर रहा है? मैम कोई कंट्री ओन नहीं करती, पर इसको कम्युनिटी मतलब इंडिविजुअल कम्युनिटी होती है। फॉर एग्जांपल आपको बिटकॉइन के नेटवर्क में वर्क करना है तो आप उसके सर्वर्स परचेज कर लीजिए या फिर आप अपनी टीम जनरेट कर लीजिए। इसमें इंडिया में साइट्स होती है, आपको चाइना से इंपोर्ट करना पड़ेगा। नहीं मैम कोई ऑर्गेनाइजेशन टेक केयर नहीं करती है। जनरली जो सर्वर्स होते हैं बिटकॉइंस के उनको माइनर्स
बोलते हैं, माइनस को चाइना से इंपोर्ट करना पड़ता है फिर इंडिया। अगर बीच में कोई प्रॉब्लम हो जैसे ट्रांजैक्शन के बीच में तो सर्वर डाउन हो जाए, क्या आपका ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट मैं बोल तो 99.99% अप टाइम आज तक कभी ऐसा डाउन हुआ नहीं, ओन रिस्क लाइक से। पर अभी तक डाउन नहीं हुआ तो आप कह नहीं सकते वो डाउन होगा। तो बेसिकली हमारे जो रेगुलर करेंसी उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। रिप्लेस तो मैं पेटीएम में रिप्लेस कर दिया उसको, आपको एक एडिशनल फीचर ही प्रोवाइड किया, एडिशनल फीचर ही हुआ। ये भी एक एडिशनल फीचर है, पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए बहुत बेस्ट है ये, क्योंकि ट्रांजैक्शन चार्जेस बहुत कम है। मतलब मैं को 5 लाख रुपए भी सेंड करने हैं या 10 रुपए भी सेंड करने हैं, ट्रांजैक्शन चार्जेस फिक्स रहेगा 10 रुपीस या 30 रुपीस के बीच में। वो अलग अलग कंपनी पे डिपेंड करता है वो क्या ट्रांजैक्शन चार्ज करते हैं, जैसे जीएसटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। एनी अदर क्वेश्चन?